friends. So today we will learn chapter number 1 from standard 3. The name of the textbook is Environmental Science. Okay, so first of all I request you, if you are new on this channel, then subscribe the channel and press the bell icon so that you can get further notification. Okay, so let us start the chapter. The name of the chapter is Poonam's Day Out. Okay, so here the conversation start with the Poonam. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. I am getting bored, said the Poonam. So basically the scene was started and the Poonam, the girl, asked her mother to get permission to go to the school. And why? Because she is being resting at the home for past 2 days and now she is feeling bored. So she asked her mother to go to the school. But you still have fever, go outside and lie down on the coat, replied Ma. But Ma says that, no Poonam beta, you have been suffering from the fever. So I advise you to go outside and lie down on the coat, her mother replied. So then after, Poonam go outside and sleep on the coat. But after that, Poonam fell asleep on the coat. Suddenly something fell on her face. It means that when Poonam is sleeping outside the home on a coat, then something has been fallen on her cheek, her face. So Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no, whose mischief is this? Is the crow or the pigeons? Okay, so basically there is nothing, but she felt that something is fallen on her cheeks. So she touched it and she seems like it is a sticky type of material. So she guessed that it might be the mischief of the crow or it might be the mischief of the pigeons. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूनम थी, उसने उसको मम्मी को पूछा कि मैं बाहर स्कूल जा सकती हूँ क्या? तो उसकी मदर ने बोला कि नहीं बेटा, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, तुम फीवर से सफरिंग हो रही हो तो आप बाहर नहीं जा सकते. तो उसने बोला कि आप स्कूल जाने की बजाय बाहर आराम करो. तो जो पूनम थी वो बाहर आराम कर रही थी, तो उसने देखा कि उसके चीक के ऊपर या उसके फेस के ऊपर कुछ आके गिरा. तो उसने सोचा कि किसने, मतलब किसने किया होगा. ठीक है, ये क्रो ने किया या पिजन ने किया. ठीक है, तो उनको लगा कि इट सीम्स लाइक अ क्रो. ठीक है, तो उसको लगा कि ये शायद क्रो ने ही किया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे उसने पेड़ पे इतने सारे बर्ड्स और एनिमल्स देखे. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें ट्री है, ट्री के ऊपर अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स है. ठीक है, सो हियर दे हैव गिवन अस अ टास्क. ओके, सो Poonam looked up. She saw many animals on the tree. Which animal can you spot on the tree in the picture? Write down the names. So I have written down the names for you: the monkey, pigeon, squirrel, crow, butterfly, sparrow, parrot and cuckoo. So these types of animals are present there. So then after Poonam picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. Then उसको लगा कि ये मुझे जो अपने फेस से है वो साफ़ करना है. तो उसने क्या किया, वहाँ से एक लीफ लिया और उसने चीक को साफ़ करने लगी. उसके बाद सी वेंट फॉर द वॉशिंग द फेस नियर बाय पॉन्ड. तो उसके बाद वो कहाँ पे गई, जो बाजू में एक पॉन्ड था वहाँ पे वो फेस वॉश करने गई. तो उसने देखा कि वहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल है उसको दिखे जो पॉन्ड के अंदर थे. सो यहाँ पे हमें और एक और टास्क दिया है, हमें उस एनिमल्स के नाम लिखने हैं. ओके, so which animal did Poonam see at a pond? Look at the picture and write their name. Goat, crane, stork, frog, buffalo and tortoise. These are the animals or these are the birds we can observe in the picture which are present at that time on a pond. Okay, so then after उन्होंने हमें एक टास्क दिया है कि हमें वो एनिमल की तरह एक्ट करना है. ठीक है, तो वो आप अपने घर पे कर सकते हैं. Now different animals move on different ways to go from one place to another. Some animals walk, some crawl. मतलब अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं, different animals are moving in a different way. Some of the animals are walking, some of the animals are crawling, some of the animals are flying and some of the animals are swimming. Or some of the animals use their feet to go from one place to another place, and some of the animal can fly because of the wings. Okay, so here they have given us a list. You can see that can fly, so crow, sparrow and pigeon. Okay, so these are the birds or these are the animals that can fly. So I have written a name. Then after can crawl, so snake can crawl, tortoise can crawl and lizard can crawl. Okay, so here you can see that. Then after can walk, so cow can walk, buffalo can walk and ox can walk.
Then after can hop, so frog can hop, hare can hop, and kangaroo can hop. Okay, then have wings, sparrow have wings, crow has wings, and the parrot has wings. Okay, then after have feet, so cow has feet, ox has feet, and horse has feet. Then have a tail, so elephant have tail, horse have tail, and tiger has tail. Then after animals live in different places. Some animals live in trees, some in water, some live on the land, some live under the ground, and some fly in the sky. Okay, so different habitats of the animal. आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ट्री के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल होते हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं, बहुत सारे एनिमल रहते हैं वो लैंड के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे एनिमल है वो ग्राउंड के अंदर रहते हैं. तो यहाँ पे हमें उन एनिमल्स के बारे में आगे सीखना है. ठीक है, तो उन्होंने हमें एक पिक्चर दिया है. ठीक है, इस पिक्चर को क्या करना है, हमें कलर करना है. तो ये आप अपने घर पे कर सकते हैं. ठीक है, आपको नीचे PDF दिया जाएगा, उसमें से आप देख के इसको कर सकते हैं. इसके बाद कंप्लीट द पिक्चर भी है, उसमें भी आपको एक PDF दिया जाएगा. ठीक है, तो आप उसको जेरोक्स निकलवा के या तो फोटोकॉपी करके आप उसको उसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसमें कलरिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे हमें एक पजल दिया है. ठीक है, सो बनाना इज वॉट आई लव ईटिंग, आई सेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग. मतलब मुझे बनाना पसंद है और मेरा टाइम मैं किस में निकालता हूँ, जंपिंग में और लीपिंग में. तो वो है मंकी. ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मंकी टिक किया हुआ है. देन आफ्टर ऑन द वॉल वेब्स आई व्यू वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव. तो ये होता है स्पाइडर. ठीक है, तो आप उस बॉक्स में स्पाइडर जो है मैंने वहाँ पे येलो कलर किया हुआ है, उसमें आप राउंड कर सकते हैं. देन आफ्टर नंबर 3, I remain awake whole night and go to sleep in the broad daylight. So basically this is owl. Okay, so owl को भी मैंने वहाँ पे उसको टिक किया हुआ है येलो कलर से, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. Croak 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 is my sound, in water or on land I am found. तो मैं मतलब croak 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 करता हूँ और वाटर या लैंड दोनों पे मैं पाया जाता हूँ. तो दिस इज बेसिकली अ फ्रॉग. ठीक है, देन आफ्टर I appear after rainfall, have no feet, so I crawl. तो ये होता है स्नेल. आपने अगर देखा हो तो वैन जो बारिश आती है, ठीक है, तो बारिश जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद हमें स्नेल्स देखने को मिलती है. स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस. मतलब ये किसकी बात की जा रही है, टॉर्टोइज की. हमें पता है कि टॉर्टोइज के बारे में एक स्टोरी है टॉर्टोइज और रैबिट वाली, उसमें आता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो इसलिए वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये यूज़ किया है. एंड आई ऑलवेज विन द रेस. ठीक है, अगर रेस होगी तो मैं जीत जाऊंगा. तो दिस इज बेसिकली बट नथिंग बट अ टॉर्टोइज. तो मैंने वो सब वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं और उसको आप फील कर सकते हैं. देन आफ्टर यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जो आपको बनाना है. ठीक है, यहाँ पे ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ही है. देन आफ्टर, ठीक है, ये आपको फिंगर से बनाना है, उसको प्रिंट करना है. उसके बाद आपको ये पिक्चर बनाने के लिए दिया गया है. ठीक है, उसके बाजू में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको ग्रुप बनाना है. ठीक है, आपने जो भी एनिमल देखा उसका आप पिक्चर बना सकते हैं. पिक्चर कैसे बनाना है वो आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दिखाया है, जो आपको पढ़ते जाना है और पिक्चर को बनाते जाना है. ओके, सो स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री. मतलब आपको एक ट्री के नीचे टाइम स्पेंड करना है. अब जैसे मेरी बात की जाए तो मैंने एक ट्री के नीचे टाइम स्पेंड किया और जो जो चीज़ें मुझे वहाँ पे दिखी उसका मैंने यहाँ लिस्ट बनाया है और उसके ऊपर से मैंने सब लिखा हुआ है. सो ठीक है, सो ऑन अ ब्रांचेस, मतलब व्हेन आई हैव सीन ऑन द ब्रांचेस देन आई हैव फाउंड दैट पैरट, क्रो एंड मंकीज आर सिटिंग ऑन द branches. Then after on the leaves I have found beetle, caterpillar and grasshopper. On the trunk I have found squirrel, ant and the termite. On the ground I have found rat, snake and rabbit. And around the tree I have found cow, dog and cat. Now arrange this animal in order of their size, smallest being the first. मतलब इसको हमें अरेंज करना है, सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ठीक है, तो नंबर 1 होता है टर्माइट, नंबर 2 इज एंट, नंबर 3 इज बीटल, नंबर 4 इज कैटरपिलर, नंबर 5 इज रेट. ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, नंबर जो 5 में है वो ग्रासहोपर आएगा और नंबर 6 में रेट आएगा. ठीक है, देन आफ्टर नंबर 7 पैरट, नंबर 8 क्रो, नंबर 9 स्क्विरल, नंबर 10 स्नेक, नंबर 11 रैबिट, नंबर 12 कैट, नंबर 13 डॉग, नंबर 14 monkey and number 15 cow. So these all are the animals I have arranged in a increasing order of their size. ठीक है, उसका साइज जैसे बढ़ता जाएगा उसको मैंने वहाँ पे अरेंज कर दिया है.
इसके बाद इन जिक्सो पजल पिक्चर इज कट इन सच ए वे दैट वन हैज इज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर्स टुगेदर। मतलब जिक्सो पजल होते हैं उसमें क्या करते हैं, पिक्चर्स को कट करके रखा जाता है, उस पिक्चर को आपको फिर उसको अरेंज करना होता है। ठीक है, तो इसको आप अपने घर पे कर सकते हैं। क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है आपको, ठीक है, पीडीएफ में से। फिर जैसे जैसे उसमें वाइट उन्होंने जो दी गई है आपको लाइंस, उस वाइट लाइंस को आपको कट करना है, ठीक है, सीजर्स लेके। देन आफ्टर जो कट किया हुआ पार्ट है उसको आपको फंबल कर देना है, उसको फिर से अरेंज करने की कोशिश करनी है। अगर उसको आपने अच्छे से अरेंज कर लिया देन यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, सो ये सारे वीडियोस है, इसमें आपको सब कुछ सही से समझ में आया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन email given below. For now it's goodbye. Okay friends, so we will meet in a next video number 2.